Guys, make sure to smile. Make sure to smile, be it a fake smile as well. तुम भाई फेकली स्माइल कर लो, ऐसा करो भाई. ऑकवर्ड लगेगा, आई नो. भाई मुझे भी लगा था. यू एंटर इन दैट गेट, फ्रॉम दैट मोमेंट यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड. I am not kidding and I'm not making this up. His girlfriend was a crew with Jet Airways at that time. And she was a cabin crew in charge and she was with Jet Airways for more than 8 years. The minimum qualification is 12 plus. जो भी तुम्हारे फेस में स्पॉट्स होते हैं गाइस, वो भी तुम्हें हटाने ज़रूरी होते हैं. सो मेक श्योर वो भी हटाओ. दिस इज़ फॉर द मेल. मेक श्योर एक भी बाल आई लिटरली मीन एक भी बाल यहाँ का यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है? बिकॉज दिस शोज हाउ डिसिप्लिन आर यू. Out of 500 people, guys, only 20 of us were filtered from that batch. अब 1000 लोगों में से मान लो कि पहले 500 लोगों को वहीं फिल्टर आउट कर देते हैं वो लोग. 500 people को फिल्टर आउट कर दिया वहीं से ही. हाउ डू यू हैंडल एन एंग्री पैसेंजर? गाइज ट्रस्ट मी ऑन दैट. मोमेंट यू आर वेटिंग, यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड. तुम किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, तुम कितने शांत बैठे हो, तुम्हारी पेशेंस टेस्ट होती है उस टाइम पे. तुमने कुछ चिल्ला दिया फ़ोन पे, कुछ हो गया, रूडली बात कर ली भाई, देन ऑल्सो यू आर आस्क्ड टू लीव, राइट? एक मेरे साथ बंदी थी कोई एमेक्स की. शी हैड 6 years ऑफ एक्सपीरियंस विद अमेरिकन एक्सप्रेस और वहाँ उसके बाद वो वहाँ आई थी. अब बहुत लोग मैंने देखे हैं ज़िंदगी में, उनका बहुत कुछ चल रहा होता है. दैट शोज अप ऑन देयर फेस, दे आर नॉट एबल टू स्माइल, सैड बैठे हैं. भाई वो तो रिफ्लेक्ट होता है सारा कुछ, तुम्हें पता है. एवरीथिंग गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड नोटिस्ड. तो वाई टू स्पॉइल योर चांसेस यार? तो जस्ट मेक श्योर, जैसे तुम अंदर वेन्यू में एंटर करते हो तो जस्ट टेक आउट ऑल दोस थॉट्स एंड जस्ट थ्रो इट अराउंड वहीं पे वापस. एंड बोलो कि मैं बाहर यहीं फेंक रहा हूँ, सारा कुछ यहीं फेंक रही हूँ. एंड देन आई एम एंटरिंग इन द वेन्यू. द मोमेंट यू एंटर इन द वेन्यू, you are in the venue completely. You are not in your relationship issues, you are not in your home some issues, you are not in your some or other issues that you having in the life. तुम वहाँ नहीं हो, तुम उस मोमेंट में वहीं पे हो. तुम वो इशू नहीं हो, वो इशू अलग है, तुम वो भाड़ में जाए. Hey guys, welcome to my vlog. Thank you so much for staying connected with me. In this vlog we'll discuss about the interview, and it's specifically for the cabin crew, also known as the air host or the flight steward. तीनों नाम मुझे एक ही मतलब है. So flight steward we usually use for the male crew and air hostess is for the female crew. So yes, a lot of people have asked me that लड़के भी करते हैं क्या ये सब चीज़ें? बिल्कुल भाई. There are a lot of airlines hiring for male crew as well. I understand Indigo is a female only crew airline, which only hires female crew. Sorry guys for the not so stable angle because I'm holding it from my hand. I tried it from the mobile holder but it did not work well, so I just sort of using my hands. About this thing. So yes, we have some companies like Vistara, Go Air, and a lot of other companies, they do hire for male crew as well, because it all depends upon the requirement. I understand the ratio for the males is less than that of females, but hota hai guys, business requirement hoti hai. So I'll be sharing you some tips, like how do you crack those interviews if you want to be in that profession. So I'll share you some tips, very important tips and some good points, so that your chances of selection goes to 99% to 100% if you go for the interview. So beginning from my experience first, like I'll show you my experience first. So back in when I was going in college, I was 19 years old and it was all unplanned. I never aimed to be a crew. Not that it's bad, it is very good guys. But I just was going in college. I went to my cousin's place in Dwarka in Delhi, and his girlfriend was a crew with Jet Airways at that time, and she was a cabin crew in charge, and she was with Jet Airways for more than 8 years, or I believe 10 years or something. So we were just having a good time. We were just chit chatting, and all of a sudden, my cousin said, "Why don't you try for this?" And I was like, I don't know what that is. I have no clue. So I was like, I need to go to college and I don't have time. So he insisted, what, do go for it, because usually guys, in this the qualification is 12 plus and the minimum qualification is 12 plus. So guys with 12 plus can join this profession.
Graduation is not a mandatory requirement in this field. So that was a plus point. उस टाइम मैं ग्रेजुएट था भी नहीं, तो मैं चला गया. तो हुआ क्या, कजन्स गर्लफ्रेंड सेड दैट गो फॉर इट एंड जस्ट मेक श्योर टू बी प्रॉपरली जाना, ग्रूम होकर जाना. तो मुझे लगा ग्रूम, मैं क्यों ग्रूम होऊंगा भाई, क्या करना, नॉर्मली जाऊँगा मैं. तो कहती ऐसा नहीं होता, यू शुड गो वेल प्रिपेयर्ड, ग्रूम होकर जाओ. एंड देन because they notice everything, right? They notice the moment you walk in that room till the moment you walk out of that room, not the room but the venue, right? They observe everything. So it is not the room you enter, it is the venue. When you are entering, let's say there's a venue, you enter in that gate, from that moment you are being observed. I am not kidding and I'm not making this up. पहले मैं सोचा था कैसे होता है भाई, पागल हो क्या, कोई CBI CIA का वो है क्या है ये. But no guys, you are being observed. They have their people on field just to observe your behavior. The moment you step in, how groomed you are, what are you wearing, how disciplined are you. So right from that moment you're being judged, man. And I was like, okay. So I was a little bit of I was nervous actually. It was my first interview, so I was very nervous honestly. So when I went in, I went alone, क्योंकि क्या करना भाई, किसी को साथ में लेके जाके. तो चला गया, मैं अपना फाइल बनाया, मैंने रिज्यूमे का अपडेट किया एंड एक फ़ोल्डर लिया मैंने प्रॉपर सा, चला गया फॉर्मल्स पहने मैंने. तो माई कज़न्स गर्लफ्रेंड सेड डू वन थिंग, यू शुड बी ग्रूम्ड इनफ. तो प्रॉपर ग्रूमिंग के साथ जाना है, ऐसे नहीं जाना है. तो मैंने कहा मुझे बताओ करना क्या है. सो शी सेड कि व्हाट, विजिट अ प्लेस दैट डे इन द मॉर्निंग एंड आई विल डू द ग्रूमिंग. मैंने कहा ठीक है. तो सो आई वेंट देयर, मैंने फॉर्मल्स पहने, वाइट शर्ट थी फॉर्मल्स वाली, ब्लैक पैंट थी फॉर्मल्स, ब्लैक शूज़ और ब्लैक सॉक्स. एंड देन मैं आपको दिखाऊंगा, थंबनेल में लगा दूंगा वो वाली फ़ोटो, सो दैट यू नो व्हाट आई मीन. सो मैं चला गया वहाँ पे, ठीक है. कैब करी मैंने, उस टाइम गाड़ी थी नहीं, कैब की करके मैं चला गया द्वारका. एंड शी इज़ लाइक कि ठीक है इधर आओ. शी लिटरली यूज सम कंसीलर ऑन माई फेस, सम फाउंडेशन समथिंग. तो मैंने कहा क्या कर रहे हो यार, मुझे मजाक नहीं बनाना है अपना. बट शी लिटरली यूज सम फाउंडेशन, ऐसे किया उन्होंने, और फिर कंसीलर से बोला कि अपने स्पॉट्स हटाने पड़ेंगे तुम्हें, ऐसे किया कुछ. जो भी तुम्हारे फेस में स्पॉट्स होते हैं गाइस, वो भी तुम्हें हटाने ज़रूरी होते हैं. सो मेक श्योर वो भी हटाओ. दिस फॉर द मेल्स. फीमेल्स तो पता ही है उनको कैसे करना होता है, करना है फीमेल्स के लिए भी है. तो मैं स्पॉट्स हटाने हैं फेस से, कुछ है तो. बाय स्पॉट्स आई मीन सम मार्क्स, देयर सम मार्क्स, सम पिम्पल मार्क्स, और सम एनी ऑफ द मार्क्स, वो हटाओ. डार्क सर्कल्स हैं तो वो हटाओ भाई, उसे कंसील करो कंसीलर से. भाई मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे बंदे आए हुए हैं बहुत अलग, ऑल ओवर इंडिया से बंदे आए हुए हैं, ठीक है. एक बंदा है लखनऊ का. तो उन्होंने कहा था मुझे पहले, जो उस टाइम मेरी भाभी थी, उन्होंने कहा था मुझे कि कैरी कंसीलर में लेके नहीं गया. मैंने कहा छोड़ो ना, क्या भाई. मैं वहाँ पर जाके देख रहा हूँ बंदे, लड़के, भाई मैं वॉशरूम में गया थोड़ा सा फ्रेश होना, लड़के कंसीलर यूज़ कर रहे हैं भाई वहाँ पे वॉशरूम में. मैंने कहा भाई क्या ये. तो मैंने किसी एक से मांगा, भाई ठीक है, जैसे स्किन टोन मैच हुआ, वो कंसीलर का टोन वोन होती है, वो मैंने लगा दिया, ठीक है. ठीक है भाई. तो लगा दिया मैंने, चला गया. अब प्रॉपरली ग्रूम होना चाहिए तुम गाइस. योर हेयर, मेक श्योर एक भी बाल आई लिटरली मीन एक भी बाल यहाँ का यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है. बिकॉज दिस शोज हाउ डिसिप्लिन्ड आर यू. योर wearing, the wearing style shows how disciplined are you. Your grooming shows how disciplined are you, right? First of all, no beard for guys, clean shave. By clean I mean clean shave. Proper small basic things they notice, everything from your nail to your nails as well, कि properly cut है कि नहीं है, everything guys, everything they notice, ठीक है. How are your shoes groomed, I mean polished enough, are they shining, they should be shining, ठीक है. तो मैंने पूरा चमका के जूते कूते भाई, पॉलिश किए थे मैंने प्रॉपर. तो सब कुछ था. तो फिर गो आई वेंट देयर, अंदर जाके स्टार्ट हुआ उनका प्रोसेस. तो पहले उनका स्टार्ट शुरू होता है BMI. तो बाय BMI आई मीन बॉडी मास इंडेक्स, जो होता नहीं है कि तुम्हारा वेट इतना होना चाहिए, मेल्स का अलग होता है, फीमेल्स का अलग होता है. तो फर्स्ट राउंड होता है उनका BMI एंड द हाइट. सो हाइट, वेट,
इज़ योर BMI. सो ये कोई फॉर्मूला होता है उसका, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या फॉर्मूला होता है. सो गाइज फॉर द मेल कैबिन क्रू इट इज़ 18 to 22 एंड फॉर द फीमेल I'm so sorry, for the male crew it is 18 to 25 रेंज, BMI इतने रेंज में होना चाहिए. एंड फॉर द फीमेल्स इट इज़ 18 to 22. ठीक है, तो तुम निकाल सकते हो. BMI का एक फॉर्मूला होता है विच इज़ वेट अपॉन हाइट स्क्वायर. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेक दैट यार. सो द फॉर्मूला इज़ इट्स वेट अपॉन द हाइट स्क्वायर. सो जो तुम्हारा वेट है उसमें केजी में डाल दो, उसको डिवाइड कर दो उसको हाइट से. अपनी हाइट जो है वो मीटर में होनी चाहिए, तो वेट इन केजीज डिवाइड बाय हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर कर लो. ठीक है, जैसे कि मेरा वेट इज़ 80 kgs डिवाइडेड बाय हाइट विच इज़ 175 सेंटीमीटर्स को मीटर करो 1.75 को स्क्वायर कर लो एंड देखो जो BMI आ रहा है. सो इट शुड बी बिटवीन 18 to just a moment. So for the male it should be 18 to 25, for female it should be 18 to 22. ठीक है. So मेरे एक्सपीरियंस में बताता हूँ तुम्हें. I'll share you the tips after this. Stay tuned. So now I went there. तो स्टार्टिंग हो गया भाई, तुम लाइन पे लगे हैं सब. ठीक है, लड़के लड़कियाँ सब लाइन में लगे हुए हैं. एक एक करके भाई यू हैव टू रिमूव योर शूज़ एंड गो इन द वेइंग मशीन एंड गिव दम योर वेट. सो वहाँ पे उनका स्टाफ होता है. सो हमारी कोई मैम थी वहाँ पे, तो शी वॉज चेकिंग द हाइट एंड द वेट. सो पहले वो तुम जाओगे, तुम्हारे वेट करेंगे नहीं, पहले वो तुम्हारी हाइट चेक करेंगे. वहाँ एक स्केल लगा होगा स्टील का, उसमें दीवार से तुम्हें खड़ा कर देंगे. तुम्हारा सर ऐसे करके चेक करेंगे हेड तक कि तुम्हारी कितनी हाइट है. ठीक है, आफ्टर दैट यू विल बी यू हैव टू गिव योर वेट. चेक करो, वहाँ पे वेट मशीन होगी, चेक करेंगे. तो उसी को देख के तुम्हारा फर्स्ट राउंड में आधे बंदे रिजेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग गाइस कि वहाँ पे तुम्हारा सिर्फ BMI देख के तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग मैंने देखे थे जो कि बहुत लंबे थे, वेट सही था, BMI सही था, बंदे वहाँ पे BMI देख के ही आते हैं, फिर भी उनको रिजेक्ट कर दिया था. सो इट कैन बी एनी रीज़न टू रिजेक्ट यू. ठीक है, you cannot question them. Simple rule है, you can't question that why am I being rejected. क्योंकि guys they evaluate in a very different parameters. You don't know, there are thousands of things going beyond their head. ठीक है, हो सकता है उसके कुछ हो सीन, पता नहीं क्या उनको क्या सीन लगा. ठीक है, तो अगर वहाँ का बहुत लोग आए थे यार, 1000 लोग होंगे वहाँ पे कम से कम. ठीक है, अब 1000 लोगों में से मान लो कि पहले 500 लोगों को वहीं फिल्टर आउट कर दिया. वो लोग 500 पीपल को फिल्टर आउट कर दिया वहीं से ही, फर्स्ट राउंड से ही. ठीक है, जिनका BMI सही तो उनको भी कर दिया भाई. ठीक है, मैं तो शॉक्ड भाई, मुझे लगा, मैं भी गया. ठीक है, तो गया मैं वहाँ पे, किया मैंने हाइट वेट दिया भाई मैडम को मैंने, तो थैंकफुली सिलेक्ट हो गया वहाँ पे मैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट राउंड उन्होंने बोला वेट करो, बैठ के वेट कर रहे थे भाई. गाइज ट्रस्ट मी ऑन दैट, मोमेंट यू आर वेटिंग यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड. तुम किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, तुम कितने शांत बैठे हो, तुम्हारी पेशेंस टेस्ट होती है उस टाइम पे. तुमने कुछ चिल्ला दिया फ़ोन पे, कुछ हो गया, रूडली बात कर ली भाई, देन ऑल्सो यू आर आस्क्ड टू लीव, राइट. दे हैव अ पर्सन, वहाँ तुम घूमते रहते हैं सबको. एंड गाइज मेक श्योर टू स्माइल, मेक श्योर टू स्माइल, बीट अ फेक स्माइल एज वेल. तुम भाई फेकली स्माइल कर लो, ऐसा करो भाई. ऑकवर्ड लगेगा, आई नो भाई, मुझे भी लगा था. फेक स्माइल करनी है, यही मुझे बताया था उन्होंने, जो भाभी थी मेरी उस टाइम, कि गाइज फेक स्माइल करनी ज़रूरी है. ठीक है, बिकॉज वो नोटिस करेंगे, बिकॉज योर फेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज तुम स्माइलिंग रहोगे, यू आर द फेस ऑफ द एयरलाइन, राइट, यू आर रिप्रेजेंटिंग द एयरलाइन. सो यू नो वॉक विद दैट पर्सपेक्टिव. तो तुम स्माइल करोगे, सबसे स्माइल करोगे. तुमने स्माइल नहीं किया, तुम ऐसे उदास बैठे हो, चुपचाप बैठे हो, भाई यू आर आउट. सिंपल इज़ दैट. ठीक है, तो वो भी करना है, बैठे हुए करना है भाई. तो चलो ठीक है, वेटिंग हुई थोड़ी सी, आई थिंक आधे घंटे की वेटिंग थी. फिर क्योंकि ये जो प्रोसेस है, इट टेक्स द होल डे. सुबह तुम जाओगे 8 बजे या 7 बजे एंड यू विल बी फ्री, गेटिंग फ्री इन अराउंड 6 PM 7 PM 8 PM. लड़कियों को थोड़ा जल्दी जाना ज़रूरी है, आई नो, बट हाँ 5 6 7 PM फ्री हो जाओगे. ठीक है भाई, तो वहाँ पे तुम गए, उसके बाद हुआ ग्रुप डिस्कशन. ठीक है, ग्रुप डिस्कशन जब स्टार्ट हुआ तो मैक्सिमम फिल्ट्रेशन ग्रुप डिस्कशन से भी होती है गाइस.
1000 बंदे आए थे पहले, 1000 में से तुम्हारे 500 फिल्टर आउट कर लिए फर्स्ट राउंड में, बचे 500, 500 में से 50, और आई वुड से नॉट इवन 50, नहीं 500 में से तुम्हारे सिर्फ 20, 20 और 15 विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, जीडी हुआ, ग्रुप डिस्कशन हुआ, स्टार्ट हुआ, टॉपिक मिला सबको कि भाई ये टॉपिक है। ठीक है, तो फटी हुई थी भाई, मतलब नर्वस थे भाई सब। तो भाई शुरू हुआ इंटरव्यू, जीडी स्टार्ट, पहला राउंड स्टार्ट हुआ, ख़त्म हुआ, हमें सब बाहर, हमें बोला कि वेट आउटसाइड, जब 5 बंदे बुला रहे थे एक बारी में, 5 का बैच था। जीडी स्टार्ट हुआ, ख़त्म हुआ, बंदे फिल्टर हो जा रहे हैं, जीडी ख़त्म हो रहा है, देयर बीइंग आस्क्ड टू लीव, जीडी ख़त्म हो रहा है, 5 बंदे घर, जीडी सेकेंड राउंड ख़त्म हुआ, 5 बंदे घर, कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा भाई। तो मैं, हमारी वाट लगी भाई, मैंने कहा तो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा कोई भी, हम लास्ट में थे। तो भाई मैं गया वहाँ पे, ठीक है, बुलाया, टॉपिक दिया कुछ, इट कैन बी एनीथिंग, कैन बी समथिंग विद द पॉलिटिक्स, कैन बी समथिंग विद द, नॉट पॉलिटिक्स बट द ऑनगोइंग टॉपिक, जो भी उस टाइम का हॉट न्यूज़ चल रही हो, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग न्यूज़, नॉट हॉट बट ट्रेंडिंग न्यूज़। तो थोड़ा पढ़ लेना पहले यार, पेपर वगैरह कुछ न्यूज़ देख लेना। तो तुमसे वो पूछते हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस जानते हैं। ठीक है, अब तुम्हें बताता हूँ क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं तुमसे। सो क्वेश्चंस कैन बी एनीथिंग विच इज़ रिगार्डिंग द कस्टमर सर्विस, क्योंकि तुम कस्टमर सर्विस फील्ड में जाने वाले हो। तो होता क्या है, कस्टमर सर्विस में तुमसे पूछ सकते हैं लाइक व्हाट इज़ अ गुड कस्टमर सर्विस, और लेट्स से हाउ डू यू हैंडल एन एंग्री पैसेंजर, क्योंकि तुम उसी फील्ड में जा रहे हो। शुड फोन्स, मोबाइल फोन्स बी अलाउड इन द एयरप्लेन्स और नो। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस होते हैं। या फिर होता है व्हाट डज हॉस्पिटैलिटी मीन टू यू, और एज पर यू व्हाट इज़ अ गुड कैबिन क्रू। ठीक है, तो ये सब आंसर सोच समझ कर देना, थोड़ा टीम वर्क वाला आंसर देना पोलाइट वे में। एंड गाइस 5 बंदे होंगे या 7 बंदे होंगे, 10 बंदे हो सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में। गाइस गलती से भी ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट मत करना, डोंट बी द फर्स्ट वन। ठीक है, ये मैंने सीखा था ब्रिटिश एयरवेज से। जब मैं ब्रिटिश एयरवेज में था तो वहाँ पे हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ था सेकेंड राउंड। ठीक है, आफ्टर पहले हमारा मैथ्स का टेस्ट हुआ था, कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट, वो जब क्लियर हुआ तो सेकंड राउंड था ग्रुप डिस्कशन। एक मेरे साथ बंदी थी कोई एमएक्स की, शी हैड 6 years ऑफ एक्सपीरियंस विद अमेरिकन एक्सप्रेस, और वहाँ उसके बाद वो वहाँ आई थी, पता नहीं क्यों सबको प्रैक कर रही है, यू नो आई वर्क विद एमएक्स दिस एंड दैट 6 साल से, एंड दिस एंड वी आर ऑल लाइक कि ठीक है सेलेक्ट हो जाएगी यार, ये बंदी सही है। यू नो ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ एंड उसका अलग बैच था एंड शी वॉज रिजेक्टेड। ठीक है, तो जब जीडी स्टार्ट होता है, पहले से पहल मत करो भाई, सबको बोलने दो। ब्रिटिश एयरवेज से मैं ही सीखा हूँ, क्योंकि वहाँ का क्राइटेरिया क्या होता है, इफ़ यू आर गोइंग इन फॉर द हॉस्पिटैलिटी लाइन ना, तो हॉस्पिटैलिटी में गाइज तुम्हारा पेशेंस टेस्ट होता है, एंड तुम्हारा ये देखते हैं कि कैन यू लिसन टू द कस्टमर्स, कैन यू, लेट्स से इफ कस्टमर इज एंग्री एंड येलिंग एट यू, विल यू बी एबल टू हैंडल इट, और विल यू येल बैक। सो जिसने भी स्टार्ट किया था ना पहले जीडी, और पहले लड़ रहे थे लिटरली, डिबेट होती है जीडी में, तो बंदा डिबेट करने लग गए हुए आपस में, दिस एंड दैट लड़ रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ क्या हो रहा है, मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, पूरी जीडी में गाइज मैं शांत बैठा रहा, कुछ नहीं बोला, मैंने एक वर्ड नहीं बोला। चलो एंड में मुझसे पूछा कि ओके सो डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग, यू हैवंट सेड एनीथिंग इन द होल जीडी, एंड आई जस्ट मेड वन स्टेटमेंट, अब याद नहीं है क्या, बट जो लास्ट बंदे ने कुछ कहा था उसको मैंने मिला के बोल दिया ओके येस एंड या आई डू अग्री विद देम एंड दिस इज़ व्हाट माई पॉइंट इज़, सिंपल। मैंने ना राइट वाला पॉइंट बोला ना लेफ्ट वाला पॉइंट बोला, बहुत ही कॉमन लाइन बोल दी मैंने। ठीक है, जिसमें ना राइट वाले ऑफेंड होया ना लेफ्ट वाले ऑफेंड होया। भाई मैं सेलेक्ट हो गया ब्रिटिश एयरवेज में, आई गॉट सेलेक्टेड, मैक्सिमम लोग सिलेक्ट हो गए थे। अब मुझे खुद समझ नहीं आया क्या हुआ, बट यूजुअली गाइज यही होता है, पेशेंस टेस्ट करते हैं तुम्हारी। कमिंग बैक टू द जेट एयरवेज का ग्रुप डिस्कशन, तो उसमें क्या था कि उन्होंने फिर बोला कि भाई टॉपिक दिया, जीडी शुरू हुआ, सब आपस में शुरू हो गए बोलना फटाफट, मैं चुपचाप बैठा रहा। फिर एंड में जाके सबको मौका मिला कि चलो आप भी बोलो, आप बोलो, आप बोलो, तब मैंने बोला एंड आई गॉट सेलेक्टेड। ठीक है, थैंकफुली आई गॉट सेलेक्टेड, सेकेंड राउंड क्लियर। और भाई मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा आउट ऑफ 500 पीपल गाइस ओनली 20 ऑफ अस वर फिल्टर्ड फ्रॉम दैट बैच। ठीक है, 20 लोग फिल्टर हुए थे कुछ,
या 20 में से भी कम ही थे, इतने ही थे, कुछ कम थे बहुत। देन वी गॉट सेलेक्टेड एंड दे सबको भेज दिया, बोला ये तुम लोग इधर आओ, एंड देन दे सेट कंग्रेचुलेशंस यू आर सेलेक्ट फॉर द फाइनल राउंड विच विल हैपन इन गुड़गांव उद्योग विहार। उद्योग विहार में गुड़गांव फेज़ 4 कहीं था, वहाँ पे जेटेवेस का ऑफिस था पहले। तो भाई मैं खुश हो गया बहुत, घर पे बोला मैंने कज़न को बोला, दे वर लाइक यो कंग्रेचुलेशंस गुड जॉब मैन। सब शौक हो गए भाई, पहली बार में क्रैक। बंदे ट्रेनिंग्स लेते हैं, एयर होस्टेस की ट्रेनिंग होती है, मेरे हिसाब से बेकार होती है, कभी मत लो। तो मैं था, विधि थी वो जयपुर से आई थी, एक बबीता थी दिल्ली की थी, और शरण थी, शरण भी दिल्ली से थी। हम 4-5 लोग थे। एक अपना लखनऊ से आया था एक बंदा, नाम याद नहीं आ रहा, तो हम सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। फिर हमें एक डेट दी, भाई इस डेट पे तुम्हें आना है इस टाइम पे, और तुम इंटरव्यू दो। सबके अलग अलग टाइम स्लॉट्स थे वहाँ पे विद डिफरेंट डेट्स। तो हम चले गए वहाँ पे, प्रॉपर कोट वोट पहन के, प्रॉपर 3 पीस सूट पहनो और फॉर्मल्स में चला गया मैं। तो फिर स्टार्ट हुआ फाइनल राउंड। वहाँ पे कोई ओनर थे जेटेवेस के, कुछ लेडी बैठे थे बहुत, एक लेडी बैठे थे, मतलब ओनर टाइप लगे थे मुझे कोई, और एक साथ में एचआर थे, हेड ऑफ़ द एचआर। उन्होंने इंटरव्यू लिया, अच्छे से बातें बातें करी, सब कुछ जाना, पूछा, एवरीथिंग इन एंड आउट। बस फिर लकीली गॉट सेलेक्टेड गाइज। आउट ऑफ दोस 20 वी वर 4 सेलेक्टेड। 20 में से हाँ 4 सेलेक्ट हुए थे, तो उनमें से मैं भी था एक। बहुत खुश था मैं। फिर देन आई वेंट फॉर द ट्रेनिंग इन बॉम्बे 3 months, एंड देन बस फ्लाई किया। ठीक था। सो ये एक्सपीरियंस था मेरा गाइज, तो इट वॉज गुड। नाउ जिस जो भी चाह रहे हैं इसमें जाना, हाउ डू यू क्रैक इट, एवरीथिंग गाइज, इट्स वेरी जस्ट बी चिल, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि होता क्या है इसमें। रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज एज जो होती है, मेक श्योर कि तुम 18 ईयर्स की एज के हो, 18 अबव हो, ठीक है। तो एज होगी आपकी पहले, अपर लिमिट कोई एज नहीं होती, डिपेंडिंग अपॉन द एयरलाइंस। तुम 30 साल के हो या उससे बड़े भी हो, 32 ईयर्स, 33 ईयर्स, 35 ईयर्स की भी मैंने देखे हैं, 40 ईयर्स ओल्ड, 45 ईयर्स, 45 ईयर्स ओल्ड क्रू भी मैंने देखे हैं, 50 ईयर्स ओल्ड क्रू भी मैंने देखे हैं गाइज। 50 साल के क्रू भी होते हैं, बट आई थिंक एयर इंडिया में मैंने ज़्यादा देखे हैं। एयर इंडिया से फॉरेन एयरलाइंस जो होती हैं, बाहर की इंटरनेशनल एयरलाइंस, वहाँ पे मैंने बहुत एजड क्रू मेंबर्स देखे हैं, स्पेशली फीमेल ज़्यादा एजड होते हैं वहाँ पे। तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई एज लिमिट होती है, ऐसा कुछ होता है। यू शुड बी फिट इनफ, योर BMI शुड बी एज पर द स्टैंडर्ड्स बाय DGCA। तो ये सब है। सो कमिंग गाइज, एज जितनी होनी चाहिए, हाइट तुम्हारी पता ही है, फीमेल्स की यूजुअली 157 सेंटीमीटर्स टू 160 सेंटीमीटर्स के रेंज में होनी चाहिए जो एज है, ठीक है। देन कमिंग टूवर्ड्स मेल की जो मिनिमम हाइट, जो मेल्स की हाइट होनी चाहिए गाइज, दैट शुड बी 170 सेंटीमीटर्स, एंड दिस इज़ द मिनिमम हाइट आई एम टॉकिंग अबाउट। Okay, so guys, जो मेल की हाइट होनी चाहिए, that should be 170 centimeters. This is the minimum height I'm talking about. Also, there's arm reach as well, wherein you have to have minimum of 210 centimeters. बहुत चीज़ें होती हैं, आर्म रीच और ये सब, ठीक है, इतना वो नहीं है, बट वो देखते हैं। मेन इज़ हाइट, ठीक है, लेट्स कीप इट सिंपल। कमिंग टू द BMI, मैंने बता दिया कितना है मेल एंड फीमेल का। Then comes the education. Education, you should be having 10+2, which is 12th. So higher secondary करी है, secondary पढ़ी है, 12th पढ़ा है, तो that is enough for this field. That is enough. Then comes English should be clear. There should be no accent. मतलब ज़्यादा वो मत सोचो कि accent होना चाहिए, नहीं। सिंपल रहो भाई, जैसे तुम्हारी accent है उसमें बात करो, फेक नहीं करना, ज़्यादा फेक नहीं करना, बिल्कुल फेक नहीं करना, बस एक्सेंट तुम्हारा नॉर्मल एक्सेंट में बात करो। जस्ट मेक श्योर योर वर्ड्स शुड बी क्लियर एंड क्रिस्प, क्लियर, राइट। जो तुम बोल रहे हो, प्रोनाउंसिएशन शुड बी क्लियर, वो क्लियर रखो। स्टेटमेंट्स अपनी आराम से सोच के बोलो,
वर्ड्स क्लियर रखो, ठीक है, ब्लैबर नहीं करना, ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना, बहुत स्लो नहीं बोलना, नॉर्मल जैसे तुम बात करते हो वैसे बोलना है, आराम आराम से, नो रश, ठीक है। देन कम्स योर अपीयरेंस गाइज, अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग। सो एक हाइजीन का फैक्टर है एक। सो इसमें तुम साफ़ सुथरे बन के जाना, मतलब प्रॉपर नहा धो के, नीट एंड क्लीन। एंड देन तुम्हारा इसमें आता है, मैं यहाँ से करता हूँ, नोट्स पढ़ लूँगा। टैटूज़ नहीं होनी चाहिए गाइज, देयर शुड बी नो टैटूज़, ठीक है। पियर्सिंग्स अवॉइड करो गाइज, पियर्सिंग्स नहीं होने चाहिए, टैटूज़ नहीं होने चाहिए। आई मीन पियर्सिंग्स पियर्सिंग डिपेंड्स अपॉन सम एयरलाइंस कि वहाँ पे रूल है कि नहीं है। जैसे कि मैंने इंटरव्यू दिया था बैक इन काफ़ी पहले, विस्तारा में हो गया था मेरा, बट एक था विस्तारा में भी उन्होंने क्वेश्चन किया था, मेरा टैटू मैंने बनवाया था अपने हैंड में, ये रहा मेरा टैटू, ठीक है। तो ये मैंने हटवाया था बाद में लेज़र से, पर वो हटा नहीं था पूरा। तो मैंने इंटरव्यू दिया था एतिहाद का, जब जेट एयरवेज बंद हो गई थी ना, तो एतिहाद एयरलाइंस आई थी इंडिया में ओनली फॉर द जेट एयरवेज क्रू, क्योंकि जेट एयरवेज क्रू की एक वैल्यू थी, तुम्हें पता ही होगा, तुमने सुना होगा। तो जेट एयरवेज क्रू की वैल्यू है मार्केट में, एक स्टैंडर्ड है जेट एयरवेज का। जेट एयरवेज का स्टैंडर्ड क्यों है कि जेट एयरवेज में अगर कोई ट्रेनिंग में फेल हो जाता है ना, जेट एयरवेज की ट्रेनिंग जो होती है बहुत स्ट्रिक्ट होती है पहली बात तो, उसमें अगर कोई फेल होगा तुम्हारे एक भी सब्जेक्ट में, तो दे डोंट गिव यू मोर एंड मोर रीट्राइज लाइक इंडिगो और अदर एयरलाइंस। विस्तारा की ट्रेनिंग भी सही होती है, इंडिगो जो होती है तुम जब तक फेल हो रहे हो ना, तो तुम पास नहीं होगे, तुम रीट्राई कर सकते हो वहाँ पे। अभी का रूल पता नहीं मुझे, पहले तो यही था, जब तक तुम पास नहीं हो तुम रीट्राई करते रहो, राइट। बट जेट एयरवेज में इफ़ यू फेल यू आर आउट बडी, यू आर आउट। सो मार्केट में बताता कि जेट एयरवेज का एक सेफ्टी स्टैंडर्ड है, दे डोंट कॉम्प्रोमाइज विद दिस। तो ये है भाई, यही सब है, टैटूज़ नहीं होने चाहिए। अच्छा, ओरल हाइजीन का ध्यान रखो, ठीक है, फिटनेस सही रखो, स्किन अच्छी होनी चाहिए। स्किन अच्छी होनी चाहिए का मतलब है तुम्हारे कोई मार्क्स नहीं होने चाहिए स्किन पे, इतने इतने जो ये सही आए हैं मेरे मार्क्स। कंसीलर लो स्किन टोन का, उंगली में लगा के ऐसे ऐसे कर लो, चला जाता है, ठीक है। और बस बाकी फीमेल्स का तो अलग होता है, थोड़ा मेकअप स्टैंडर्ड होते हैं, उनके बाल ऐसे टक इन होने चाहिए, ये सब। फॉर बॉयज़ ऐसा कुछ नहीं है, तुम ध्यान से जाओ, क्लीन शेव होना चाहिए, हमारा मेन मेकअप स्टैंडर्ड यही है, क्लीन शेव। और बस कुछ स्पॉट्स हैं तो हाइड कर लो उसको कंसीलर से, दैट्स इट। बाल ग्रूम करके जाओ, स्प्रे लगा लो, हेयर स्प्रे या जेल आता है, या स्प्रे लगाओ, प्रॉपर्ली ग्रूम्ड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ बाल उड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं, प्रॉपर्ली ग्रूम, डिसिप्लिन, ठीक है। ये सब है। बाकी रिगार्डिंग द मेडिकल एंड हेल्थ, सो मेडिकल में तुम्हारी आई साइट आती है विच शुड बी 6/6, मतलब भाई ध्यान रखो आई साइट का, प्याज व्याज खाओ, अनियंस खाओ, सही रहती है उससे आई साइट, ठीक है। विटामिन सी लो। मेडिकल इश्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा मेडिकल होगा पहले तो, अगर तुम सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद तुम्हारा मेडिकल होता है। तो मेडिकल हमारा हुआ था दिल्ली में, कोई हमारा तो हॉस्पिटल का टाइप था, तो उससे था, अपोलो था या कोई था, वहाँ हमारा मेडिकल हुआ था। सब कुछ देखते हैं मेडिकल में, ब्लड टेस्ट होता है प्रॉपर, सारे सैम्पल्स लेते हैं तुमसे वो लोग, उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं, वो सही होने चाहिए, ठीक है। वो सब कंपनी स्पॉन्सर्ड होते हैं, हमारा तो कंपनी स्पॉन्सर्ड ही था, ठीक है। फिर आता है पर्सनालिटी एंड स्किल्स। नाउ इन पर्सनालिटी एंड स्किल्स गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तुम भी वैसे बात कर रहे होगे, सिंपल है, कम्युनिकेशन नॉर्मल होनी चाहिए। इंग्लिश में थोड़ा सा नॉर्मल तो मैं बोलना आना चाहिए, तुम फ्लो में बोल लो, कोई सीन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये है तुम्हारा बस पर्सनालिटी एंड स्किल्स में, ठीक है। अच्छा, what they focus is not only them but most of the organizations, be it in any field, they focus on the presence of mind. तुम इंटरव्यू में जा रहे हो, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड सही है, तुम इफ़ यू आर यू प्रेजेंट इन द मोमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ये क्वेश्चन जो भी आते हैं तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट करने के लिए आते हैं, वो बहुत मुश्किल नहीं होंगे कि जोधा अकबर बीरबल के टाइम पे क्या आता, नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना, तुम यू शुड बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, राइट। तुम्हें पता तुम यहाँ बैठे हो, बैक ऑफ द माइंड में तुम्हारा कुछ थॉट्स नहीं चलने चाहिए ज़्यादा, मतलब तुम जा रहे हो इंटरव्यू में ना, तो एक प्रैक्टिस कर लो कि वट एवर सिचुएशन यू आर इन लाइफ, कुछ भी चल रहा हो हमारे लाइफ में, किसी भी फेज़ में तुम हो भाई, तुम्हारा वो फेज़ रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए इंटरव्यू में। तो जस्ट मेक श्योर, जैसे तुम अंदर वेन्यू में एंटर करते हो तो जस्ट टेक आउट ऑल दोस थॉट्स एंड जस्ट थ्रो इट अराउंड वहीं पे वापस, एंड बोलो कि मैं बाहर यहीं फेंक रहा हूँ, सारा कुछ यहीं फेंक रही हूँ, एंड देन आई एम एंटरिंग इन द वेन्यू। The moment you enter in the venue, you are in the venue completely. You are not in your
relationship issues, you're not in your home, some issues, you're not in your some और अदर इश्यूज़ दैट यू हैविंग इन द लाइफ, तुम वहाँ नहीं हो, तुम उस मोमेंट में वहीं पे हो, तुम वो इशू नहीं हो, वो इशू अलग है, तुम वो भाड़ में जाए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस कर लो, सब बढ़िया रहता है। कभी भी तुम, बहुत लोग मैंने देखे हैं ज़िंदगी में उनके बहुत कुछ चल रहा होता है, दैट शोज़ अप ऑन देयर फेस, दे आर नॉट एबल टू स्माइल, सैड बैठे हैं, भाई वो तो रिफ्लेक्ट होता है सारा कुछ, तुम्हें पता है, एवरीथिंग गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड नोटिस्ड। तो वाई टू स्पॉइल योर चांसेस यार, ऐसे नहीं करना। एक प्रैक्टिस कर लो, बना लो, हैबिट बना लो, तुम जा रहे हो वहाँ पे, तो जस्ट बी फुली प्रेजेंट एंड दैट इज़ वॉट दे वॉन्ट, नथिंग एल्स। नॉट ओनली द एयरलाइन इंटरव्यू, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंटरव्यू, एनी बिजनेस मीटिंग को, ज़िंदगी के रोज़मर्रा ज़िंदगी में यही होता है भाई, ठीक है। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। देन कम्स पासपोर्ट, तो होना ही चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है, फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स। और जो जैसे कि मैंने बोला कि इंडिगो सिर्फ फीमेल्स हायर करते हैं, तो लॉट ऑफ एयरलाइंस हायर मेल क्रू एज वेल। तो दोनों जेंडर्स को जो हायर करते हैं, तो एयरलाइंस आर एमिरेट्स, कतर एयरवेज हायर कर रहा है तुम्हारा, एतिहाद तुम्हारा हायर करता है, मेल एंड फीमेल बोथ, तुम्हारा विस्तारा हो गया, लुफ्तांजा हो गया, लुफ्तांजा इज़ गुड एयरलाइन, ब्रिटिश एयरवेज दोनों हायर करते हैं, सिंगापुर एयरलाइंस अमेजिंग एयरलाइंस का, इज़ वेरी वेल पेड, वेरी वेरी वेल पेड, लाइक दे पे यू गुड, ठीक है। देन व्हाट एल्स, बस गाइस यही सब है यार। थोड़ा सा क्वेश्चंस पढ़ लेना कस्टमर सर्विस के, कि क्या होती है कस्टमर सर्विस, और व्हाट इज कस्टमर सर्विस, दे कैन आस्क यू, टेल मी एनी you know, any situation you have faced wherein you were really stressed or tensed and how did you resolve that। तो एग्जाम्पल ऐसा देख लेना कि भाई क्या सिचुएशन थी, ठीक है। तो मैंने तो कहा था कि भाई आई वॉज in a situation wherein I was dealing with the travel agency and then I had to resolve the issue for the flights and then I was able to, कुछ भी बना के बोल दो यार, I was dealing with a customer, this and that, you know, anything of that sort। फिर ये सब पूछेंगे, मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन इन योर लाइफ, हाउ डू हैंडल इट, वो दे विल टेस्ट योर प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स बेसिकली, कि तुम मतलब प्रेशर में कैसे परफॉर्म करते हो। फ्लाइट में क्या होता है, प्रेशर होता है ना भाई फ्लाइट में, यू नो डोंट नो कि भाई व्हाट इफ फ्लाइट को डिचिंग करना पड़ जाए, तुम क्या ऐसे, हाउ विल यू रिएक्ट इन द सिचुएशन। डिचिंग मतलब कि जब प्लेन जो है पानी में लैंड होता है तो उसको डिचिंग बोलते हैं। तो तुम सही से हैंडल कर लोगे पैसेंजर्स को, खुद को मेंटली फिजिकली परफॉर्म कर पाओगे, तो ये सब वो हैंडल करते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेस हैंडलिंग स्किल्स, स्ट्रेस हैंडलिंग एबिलिटी कैसी है, सही है कि नहीं है, वो सब तुम देखते हैं वो सब लोग, ठीक है। तो ये सब होता है यार, और तो क्या है, दैट्स इट, मतलब यही है। तो गो वेल प्रिपेयर्ड गाइज, और इतना कुछ सोचना नहीं है, ज़्यादा मत सोचो, बस ग्रूमिंग का ध्यान रखो और कुछ नहीं, मत चिल करो, BMI ध्यान रखो, ज़्यादा वेट मत बढ़ाओ अपना, ठीक है। अगर मैं सोचूं अब जाने का तो मैं नहीं कर सकता, बिकॉज मेरा BMI ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मेरा वेट बहुत बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बाकी कुछ भी हो लेट मी नो एंड आई विल शेयर सम लिंक्स एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, सो refer to the links, and that's all. And if you like this video, just like and subscribe. Thank you.